کی حضوری ہوتی ہے وہاں بندھن ٹوٹتے ہیں، اس کے جلال سے، اس کی حضوری سے، اس کے ایسا مسئلہ سے، اس کے زور سے، اس کی قوت سے، اور پھر ابلیس کے بڑے بڑے کام فنا ہوتے ہیں۔ آمین۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پرانے عہد نامہ کے اندر یہ لفظ جلال جو ہے یہ 120 دفعہ خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، صرف خدا کے جلال کے لیے۔ اور یہ لفظ ہے کہ بائبل کہتی ہے خداوند سلطنت کرتا ہے اور قومیں کم پہ، قومیں کم پہ۔ پھر لکھا ہے وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے اور زمین لرزے، زمین لرزے۔ آپ نے کبھی طوفان دیکھا آتے ہوئے؟ تیز طوفان ہو دیکھا؟ کسے سب نے دیکھا ہوگا نا؟ جب تیز ہوا، ہاتھ اٹھاؤ، جب تیز ہوا چلتی ہے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا، دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہوا تیز چلتی ہے ہر بندہ اس سے ڈرتا ہے، ڈرتا نا، چار بھائی اندر کر لو، بچیاں نو اندر کر لو، فلاں کو اندر کر لو، ایسا ہوتا ہی ہے نا، ہوتا ہی ہے نا۔ بھائی کیوں؟ کیا سبب ہے؟ واٹ از ایسا ریزن؟ کیا ریزن ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کیا سبب ہے؟ طوفان سے لوگ کیوں ایسا ڈرتے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، نحوم کی کتاب پہلا باب 4 آیت کے اندر لکھا، خداوند جب آتا ہے اور بادل اس کے پاؤں کے نیچے اور وہ گرد باد مسکرا ہوتی ہے اور طوفان میں خدا ہوتا ہے۔ بلے شاہ نہیں ہوندا اور یا کھور ہوندا، کیا پنجابی چاہتے اور بولو تو صحیح نا، کیا ہوتا تھا جب بڑا طوفان ہوتا؟ ہم کیا کہتے تھے؟ جملے شاہ کیا کہتے ہیں؟ اور بولنا اچھا، میں اقرار بھی میں کرا، گلا بھی میں سنا ہے، گلا میں ساری میں دسا کیا ہوتا تھا؟ لیکن نہیں، میں نے جب بائبل کو پڑھا، بائبل کے اندر لکھا ہے خدا طوفان، لکھا طوفانوں میں آؤں گا میں ہی تجھ کو بچاؤں گا۔ اور نحوم کی کتاب کے اندر لکھا گرد باد پہ اس کی راہ ہے۔ جب خدا بیٹھتا ہے، بائبل لکھا وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے اور زمین لکھا ہے لرزے۔ زمین کیا لکھا ہے؟ اب کروبی کیا ہے؟ مکاشف کی کتاب کے اندر ان کو 4 چاندار بیان کیے گئے۔ کتنے چاندار؟ 4 چاندار ان کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کروبی ہے۔ بائبل کے اندر لکھا، حزقیل کی کتاب کا جب مطالعہ کرے تو لکھا میں نے جب نہر کبار کہتا میں نے رویا میں آ گیا اور میں نے نہر کبار کی جانب جب میں نے رویا میں دیکھا تو ایک سے میں رویا دیکھ رہا تھا اور نہر کبار کی جانب میں نے دیکھا وہ کروبیوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ آمین۔ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جو 4 چاندار ہے وہ کروبی ہیں، وہ اعلیٰ فرشتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے 4 ہیلی کاپٹر ہیں۔ آمین۔ جب آپ آتے ہیں نا تو آپ جب آتے ہیں تو آپ کو پتا پربتوں ہچی کے مارتی ہیں۔ آمین۔ پھر معجزات ہوتے ہیں، پھر لنگڑے چلتے ہیں، پھر بہرے سنتے ہیں، پھر کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے کام رو نوا ہوتے ہیں۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے وہ جب کروبیوں پر بیٹھتا ہے اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کروبی جو ہے اور یہ 4 چاندار ہے جن کا مکاشفہ کے اندر ذکر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے 6 پر ہیں۔ کتنے؟ ہاتھ اٹھاؤ، انگلیاں نہیں کرو۔ کتنے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ایسا آن لائن بھی ہے۔ اور کتنے ہاں انگلیاں کھانی ہونے چاہیے۔ آپ آخر نہیں کتنے تھیلے ملے تھے آٹے دے اچھی پھٹا دے 3 ہے، میرا منڈا بھی بیایا ہے۔ کتنے ہاتھ کرو، کتنے 6 اور بائبل میں لکھا 2 سے یہ فلائنگ کرتے ہیں اور 2 سے اڑتے ہیں اور پھر 2 کو اپنے چیڑی کو چھپا کے رکھتے ہیں، کہیں اس کی نور کی تجلی، اس کا جلال، اس کی حضوری، اس کی قدرت، اس کا مسا، اس کا زور ہمارے چہرے کے اوپر نہ پڑ جائے تاکہ ہم جل نہ جائیں۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے حزقیل بیان کرتا ہے کہتا ہے جناب اعلیٰ جب میں نے اپنی پہلی کتاب حزقیل اس سے پہلے وہاں کے اندر لکھا ہے کہتا میں نے دیکھا 4 چاندار ہے اور وہ کروبی ہے، ان کے پہیے ہیں اور جب وہ جدھر کو چاہتا ہے وہ چلتے ہیں اور جدھر کو چاہتا ہے ادھر کو وہ مڑتے ہیں۔ اور کہتا میں نے جب دیکھا میں رویا دیکھ رہا تھا۔ میں کیا دیکھ رہا تھا؟
क्या देख रहा था? मैं कह रहा हूं आज जो आप कलाम सुन रहे ना, इसके वसीला से आपका सारा मसला हल होगा। आमीन आमीन छोटा और पिछला तो आमीन निकल जाए ना। आमीन आमीन। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हिस्कियल बयान करता है, हिस्कियल कहता है जनाबे अला जब मैंने उसको देखा और जब मैं रोया मैं क्यों नहीं गया भाई? नहीं देख गया मैं तक मारना है, ये खुदा की मर्जी है ना, ये भी हम सीखेंगे। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, दोनों हाथों को उठा, दोनों हाथों को उठा। लेकिन दानियल हिस्कियल कहता है जनाबे अला जब मैंने देखा और मैंने जब वो करूबी देखे, वो जानदार देखे, और मैंने जब जानदार देखे उनके ऊपर ऐसा तख्त देखा। उनके ऊपर क्या देखा? उनके ऊपर जब तख्त देखा, और तख्त के ऊपर बयान करता है हिस्कियल कहता, और मैंने जब तख्त देखे, तख्त के ऊपर एक बंदा देखा और एक जगमगाहट देखी, एक नूर देखा, एक तजल्ली देखी, एक कुदरत देखी, एक मसा देखा और एक तख्त देखा। और तख्त के ऊपर ऐसी जिਵੇਂ गुड्डी गुड्डे दी पई नहीं पई होती जगमगाहट। आप परसों चौथे पैसे बल्कि पिछले हफ्ते सॉरी इधरों कट्ठे दो पईयां से, लेकिन लिखा है कहता है ऐसे जगमगाहट चारों तरफ थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो बयान करता है, वो कहता है जब मैंने देखा और वो फिर ये नहीं बिजलियां निकलती थी, कहता है आवाजें निकलती थी, कहता है दहशत थी, कहता रौब था, कहता डर था, कहता खौफ था, और मैं उसको सहन नहीं पाया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है और बाइबल मुकद्दस बताती कहता फिर मैंने तख्त देखे, तख्त के ऊपर एक बंदे को देखा आज जिसका लिबास जैसे पीतल को शिकल किया हुआ हो, जैसे आग से ताया किया हो। और कहता जब मैंने गौर से देखा, कहता मैं यहाँ से लेकर इधर देखो, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा, अभी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना ही था। लेकिन हिस्कियल बयान करता कहता जब मैंने देखा मैंने चेहरे की तजल्ली सह ना पाया, मैं नूर की तजल्ली सह ना पाया। इतना जोर था, इतनी हजूरी थी, इतनी प्रेशेस थी, इतनी कुव्वत थी, कहता मैं ऊंटे मुंह गिर जाता। तालीम लगी ठोक के बताओ, ठोक के जोर से मरीज को बता। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है खुदा का कलाम, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा इसके उसका पहला बाब और 13वीं आयत के अंदर लिखा है और वही उन जानदारों सूरज जो उनकी शक्ल आगे सूखे हुए खोले और मशरूक की मानत थी, और जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नूरानी थी। वो आग क्या सी थी? एक कागज साड़न वाली होंगी। कई बार किस गल अग ना लाइए तो गल ही कर दिए तो भामड़ लग जाता है। हूं ना बोलो, लग जाता भामड़ या नहीं है? और बोले तो सही, पता सारा तीनी किधरों लौड़ी है। लेकिन बाइबल में लिखा है कहता है ये आग नूरानी है, ये आग ब्लेसफुल है, ये आग बचाने वाली है। और आगे लिखा है और ये आग नूरानी थी और उसमें से बिजली निकलती थी, और वो जानदार ऐसे हट्टे और बढ़ते थे जैसे बिजली कूद कर जाती है। आमीन। कहता जैसे मैं जानदार वेखे ने तो मैं इंजन हो गया। आपको पता है चाबा खुदा की सुनी बात थी, मुझे एक बंदा बता रहा था, उसका नाम नहीं लूंगा, कहता जब मैं देख रहा था पानी सब हाथ ना किधर रख दे मेरे ऊपर, मैं पसीने मेरा जिस्म कमना शुरू हो गया। जब खुदा की मैंने उसे बताया भाई ये खुदा की हजूरी थी। आमीन। वो मुझे बता रहा था, कहता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा ऐसा होना इसके लिए तो लोग तरसते हैं। आमीन। लेकिन कहता अभी मैंने वो जानदार देखे, कहता जब मैंने उससे देखा, सब तवज्जो करना, और ऐसा है सब तवज्जो करना, उसकी दानी इसके उसका पहला बाप उसकी ऐसा है कि 27 साल पड़ेंगे, और मैंने इसकी लिखे कमर से लेकर ऊपर तक सिकल किए हुए पीतल सा रंग और 16 सात जलवा और के दरमियान इतना कितने देखा, उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने 16 की सी तजल्ली देखी, और उसकी चारों तरफ जगमगाहट थी, और जो कमान की सूरत है और जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, और वैसी आसपास की जगमगाहट थी, और शेर खुदावन के जलाल
जलाल का इजहार था और देखते ही उन्हें मुंह गिरा। और हिजकियत च किहड़ियां बदरूआं नहीं समझ आ रही? जेडे डिगदे ने उस बदरूआं वाले नहीं डिगदे, डिगदे बदरूआं वाले भी नहीं, और आगे जाके गल करांगे। लेकिन शाह हिजकियत कहता मैंने खुदा के जलाल को देखा, हालेलुया। मैं उन्हें मुंह गिरा, आग थी, मस्सा था, जोर था, ताकत थी, कुव्वत थी, उसकी हजूरी थी। कहता मैं उसकी हजूरी को सह ना पाया। लेकिन आइए क्योंकि हमने सीखे ये करूबी कौन, ये करूबी हमने सीखे। दूसरी बात यह है कि खुदा का जलाल कोई सीना पर बसम करने वाली आग है। खुदा का जलाल जो है, खुदा का मस्सा जो है, खुदा की हसूरी जो है, खुदा की बैसत जो है, ये बसम करने वाली आग है। ये बसम किनको करती है? बीमारियों को, दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, अबलीस के तमाम तर कामों को। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब उसका जलाल आता है फिर बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। और आपको पता है जब बनी इसराइल ने कहा, क्या मूसा से कहा क्या तू ये अकेला नबी है? क्या खुदा ऐसे तेरे साथ ही कलाम करता है? क्या हमारे साथ खुदा कलाम नहीं करता? और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा कि मूसा इनको कल जो है कोई सीना पर ले आना। और किनको ले आना? कलीसिया को। किनको ले आके रहा? तूने क्या तेरे दिन रोजा रखना की करना? फिर आखना नहीं मेरी तो शुगर ज्यादा हो जाना, मेरा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना। आह नो, ऐसा नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ फिर कुछ करना पड़ेगा। ऐवी नहीं तजलियां वेखी जानियां दवा आधे घंटे दी ना तो बरकत अब्राहम जैसी दोनों ऐसा नहीं होगा। पर खुदा कहेगा शेम 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 शेम। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि 3 दिन तक मेरी हसूरी में ठहरे रहना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा ने कि इनकी हदबंदी भी कर देना। क्या कर देना? और मैं बाइबल को बताती है, और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, और जब मैं हिजकिय्याह की किताब को पढ़ने के बाद मैंने खरूज की किताब को पढ़ा तो एक सेम सा एक माहौल जो है वो मुझे ऐसा है नजर है। खरूज की किताब 19 बाब 16 आयत के अंदर लिखा है, अच्छा तुम जो फरमाना 19 बाब के अंदर खुदा ने कहा इनको सामने लेकर आना और हदबंदी कर देना, कोई बंदा भाग करे ना। हम लाइनों में क्यों बैठते हैं आपको पता है? लाइनों में इसलिए बैठते हैं तरतीब से ब्लेसिंग मिले। आमीन। यीशु मसीह ने जब खाना दिया तो क्या कहा? लाइनों में, बोलो तो सही, लाइनों में बैठ सकते। लेकिन बाइबल में के अंदर लिखा खुदा का हदबंदी कर दे ताकि कोई बंदा जो मैं कोई सीना ते उतरा, जो मेरा जलाल आए, जो मेरा मस्सा आए, जो मेरी कुव्वत आए। मैं एक गांव में गया, एक पादरी की बीवी थी और मैं सामने कलाम सुना रहा। मैं खुदा ने मुझे उनके बारे में कहा, मैंने कहा उनको बुलाओ, और वो भाग गई। ये ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा उनको बुलाओ, उनके लिए हमने प्रेयर करनी, और वो भाग गई। वो मीटिंग में नहीं आई। मैं बताना चाहता हूँ ताकि हम खुदा के जलाल से भागे ना, बस उसका लुत्फ उठाएं। आमीन। और लिखा है आज जब 30वां दिन आया, सुबह होते ही, आप दुआ सुबह सुबह क्यों रख रहे? सुबह होते ही और बादल गरजने, बिजलियां चमकने लगी। आज में देखे जहां खुदा था वहां बादल चमकते हैं, और वह बिजलियां बड़े बड़े काम रोनमा होते हैं, यानी अजीब काम होता है। और लिखा है और पहाड़ पर काली कटार छा गई, और अग्निकट करने की आवाज बहुत बुलंद हुई। सब लोग डेरों में कांप गए, और मूसा लोगों को खेमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलवाए। और यार इसी में मिलना चाहिए तो बड़ा सोचना पैदा, एप्लीकेशन लिखनी पैंदी, ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਤੇ ਟਾਈ ਸਹੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਰਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗਿੱਡਾ ਗੁਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਾਟੇ ਦੇ ਗੋਏ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੋਇਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ तो थोड़ा हाथ में भी लाया है। नहीं मैं इसी फौरन कहकर इनको बाहर निकाला। भाई क्यों? ये कलीन नहीं है, ये पाक नहीं है, ऐसा है। खुदा पशु शू ला के जाना, खुदा से जब मिले तैयार हो के आए, जिस्मानी भी तैयार हो और सबसे पहले रूह से भी तैयार हो, ताकि खुदा जब आपके साथ बात करे। और बाइबल में लिखा है और काली कटार छा गई और मूसा लोगों को खुदा से मिलवाने के लिए
करने के लिए आए? किससे? तुम खुदा से मुलाकात करने के लिए हमें तैयार होकर जाना चाहिए, दिल से रूहानी तौर पर तैयार हो, हमने खुदा के साथ बात करनी। आरी सारी दुआ जी हाँ मैं किन्ने दा सूट लिया कुड़ी हाँ भैन मैंने भी दसी केड़ी दुकान तो मिलता हाँ हाँ केहो जा सीता ही ऐसा ऐसा जब दुआ के नहीं कहा जाता सारे लोग उधर वे खिला पे दे देने दुआ ऐसा जिन्ना गुड़ पाइए हैं जिन्ना गुड़ पावांगे। लेकिन बाइबल में लिखा वो किन को मिलवाने के लिए लाया? सब तवज्जो फरमाना, किन को मिलवाने के लिए लाया? किनको? खुदा से। किन से मिलवाने के लाया? तो बाइबल में लिखा है जब खुदा से मिलवाने के लिए आया। और तारीख और बाइबल में मुक़द्दस कानून की किताब के अंदर लिखा है जो शरीयत की दूसरी किताब है और लिखा खुदा 16 में से होकर पहाड़ पर आया। किसमें से? 16। किसमें से? 16 के माने लेटर है लेटर वेरी गुड है आने को नहीं था है लेटर किसी के पास लेटर है माथे चौक लिया 16 से 16 का मतलब होता है बड़े पावरफुल से आग निकली और धुआं उठा। और बाइबल एक और मैं बात बता देगा और पहाड़ जोर से हिल रहा था और लोग मूसा से कहने लगे जहां पहाड़ हिल रहा है हमारी क्या औकात है, हम मूसा तेरे खुदा से बात नहीं करना चाहते, तू ही हमारे साथ कर लिया। ताड़ी ठोक के बजाओ यार और जिन्हें नाश्ता नहीं किया मेरे को आगे करे साढ़े घर रहे हुए कोई आलू वाले परोठे पे हुए दो ढोलक वाला पता नहीं खाया या पे हुए और भाई तगड़े होके ब्याह करो। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल में लिखा है और पहाड़ से तेरे बोलो से क्या कर रहा था? पहाड़ जोर से क्या कर रहा था? आया कौन है? पास्टर नवीद आया तो पास्टर और आया खुदा आया है। ये खुदा का जलाल है। जब खुदा आता है पहाड़ हिल जाते बंदे क्यों न डिगे? आमीन। देखा पहाड़ जोर से हिल रहा था और रिक्वेस्ट करना चाहता है अपने जलाल से अपनी हसूरी से। फिर आगे लिखा है 30 बार खुदाम के जलाल से लोगों का गिरना। ये हम बात खास तौर पर सीखेंगे। अच्छा लोग क्यों डिग दे? कई बार आते नहीं हथ को जलाया होगा अब मेरे तो पसीना ही लगा यार है पाउडर तो मैं लाया होगा वैसे ही मेरे निशान पाए इधर पूंजी आन पूंजी है क्यों? क्या सबब है? क्या रीजन है? बाइबल के अंदर लिखा है तवज्जो फरमाना खुदा के जलाल से लोगों का गिरना ईमानदार और बदरूहों का गिरना भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब दानिएल ने रोया देखी तो लिखा है वह पास मुर्दा हो गया और मेरे साथी ने रोया ना देखी और तो ऊपर कपतारी हो गई। कहता वो कांपना शुरू हो गया अभी रोया नहीं देखी अभी नाम सुना है। तुझे कि देंगे इंजे नशे कट्ठे शराब पीते तुझे माड़ा जा को नंग के फूक मार दो पुलिस आ गई मैंने दौड़ा वेखे को पता कौन आगे कटापे है ऐसा है ये ना बाइबल के अंदर लिखा बाइबल बताती है जब खुदा आता है जब मस्सा आता है सब सोना दानिएल ने कहा मेरे साथियों ने रोया नहीं देखी और कमना शुरू हो गया वो डिगना शुरू हो गया इधर उधर। कहता मैंने जब देखी वह बस मुर्दा हो गया और मैं कई दिनों तक बीमार पड़ा रहा क्योंकि मैंने खुदा की तजल्ली देखी। आमीन आमीन आमीन। कहता मैं ऊंधे मुंह गिरा। जब बाइबल के अंदर लिखा और जब हैकल के अंदर खुदा आया जब गाने वाले बजाने वाले मैंने सुनाया था मैसेज जब गाने वाले बजाने वाले मिल गए आवाज मिल गई सांस मिल गई ताली मिल गई सेध मिल गया सोच मिल गई इरादे मिल गए सब कुछ एक मिल गया और खुदा जो है वो आया और आहत के सदू के ऊपर जिसका नाम बताया था उसके ऊपर एक पर्दा होता था शिकायना के ऊपर खुदा होता था। और जब खुदा कहाँ आता है देखा काहिना अपने कदमों पे ठहर नहीं सके पादरी भी लगेगी पादरी कोई और डिगा है कोई और डिगा तो फिर कलीसिया किधर गई होनी वहां खुदा था। आमीन आमीन छोटा आमीन। और फिर एक और बात जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो कोई पढ़ेगा 18वां बाप ये हुनर सुन के जेल निकाले 18वां बाप हुन बंदे डिगने वाली बात हुन डिगने भी नहीं बात दुआज जन्म हाथ रखे डिगने भी नहीं। आमीन
हाँ जी निकाले। हाँ जी 5 तो 6 यूहन्ना रसूल की इंजील 18वां बाब 5 से 6 मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कलीसिया में सुख पढ़े। हालेलुया। हाँ जी वो माइक दीजिए, आज माइक दे दिया सर। हालेलुया। बाजी करो जब तवज्जो करना ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ, ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਯਹੂਦੀ ਵੀ है। जब तवज्जो फरमाना कौन है साथ? उदासी युद्ध। इधर देखिए आप, जब ये उदासी युद्ध को पकड़ने के लिए आए ना तो यीशु मसीह एक घर में बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे यीशु मसीह ने कहा भाई किससे ढूंढते हो? भाई किससे? उन्होंने होली जी आखे कने आके टीम ने यीशु मसीह तेनों लभदे नहीं। यीशु मसीह ने बिलाल दरबार से कहा तो उदासी युद्ध भी सारे पलटन पीछे होकर गिर पड़ी। हम जिसे कहते हैं सलेन होना। पढ़े जी। पाक कलाम में यूँ लिखा है, उन्होंने उसे जवाब दिया यीशु नासरी को। अच्छा यीशु ने पूछा किन्हों लाभदे हो? उन्होंने कहा कि यीशु नासरी को। उन्होंने जवाब दिया यीशु नासरी को। जल्दी जल्दी। यीशु ने उनसे कहा मैं ही हूँ। कहा वो मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। हाँ क्योंकि उन्हें पैसे रहे उन्हें भी जाके 2 दिन डबिया सीखा नहीं पीरिया उन्हें पैसे को चले जाके कि होटल से खाना खाना और उनको पता था मैंने इनका ऐसा प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया। आगे बढ़े। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ और वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। आमीन। बैठ जाइएगा। वो उससे कहते ही कि मैं ही हूँ, ये कहती वो पीछे जमीन पर गिर पड़े। इसका मतलब था उसके बोलने से भी नॉन्टिंग थी। आमीन। इसलिए तो बाइबल के अंदर लिखा है और यशायाह कहता खुदा ही आएगा जो सब कुछ बहाल करेगा। और यीशु पहले देखे पहाड़ के ऊपर कौन है? खुदा है। खुदा से बात है पहाड़ हिलता है या नहीं हिलता? लोग गिरते या नहीं गिरते? लोग रोया गिरते? यहाँ सामने आकर कहता वो मैं ही हूँ। और ये कहना ही था और बाइबल लिखा वो सब गिर पड़े। आमीन। दिख गया या नहीं? बाइबल जो गल है बदरूहें भी गिर पड़ती थी। मरकस रसूल के इंजील तो उसके 3 बाब के अंदर लिखा है जब बदरूहें नापाक रूहें यीशु को देखती थी चला कर कहती थी ऐ खुदा ताला के बेटे मुझे तुझसे क्या काम है? और जब उससे देखती थी वो गिर पड़ती थी। आमीन। बदरूह वाले भी देखते ने तो ईमानदार भी देखते ने। ईमानदार जब गिरते हैं वो नूरानी आग से गिरते हैं। आमीन। वो मस्सा में गिरते हैं, गिरते वो भी मस्सा में है, लेकिन जरूरत है वो खुदा की नॉन्टिंग को लेते हैं। आमीन। वो खुदा के मस्सा को लेते हैं और वो खुदा की कुदरत को लेते हैं, वो खुदा के जोर को लेते हैं, क्योंकि जरूरत इस बात की है हम गिरे उसके मस्सा में। अब रीस के मस्सा में ना गिरे, हम उसके मस्सा में गिरे। हम उसकी लिखा है तजल्ली में जाए, हम उसके ऐसा है हसूरी में जाए। जब उसकी हसूरी, उसका मस्सा, उसका जोर, उसकी ताकत, उसकी ब्लेसिंग आपका होता जब जब लिखा कैद खाना के अंदर खुदा का चलाल आता है तो कैद खाने की नींव हिल जाती है। कैदी क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि खुदा का जलाल वहां था। अगर आपके अंदर कोई कैदी है आपके खानदान में, आपका तो आप किसी कैद में है तो आज उससे कहें मैं आजाद होना चाहता और चाहती हूँ, मैं तेरी हसूरी में दिव्य होना चाहता और चाहती हूँ। आमीन। बाइबल के अंदर आइए फिर 99 की तरफ आते हैं। लिखा है क्योंकि जबूर नवीस कहते हैं खुदावन सल्तनत करता है और कौमे कांपे, वो करूबियों पर बैठता है, जमीन लरसे, जमीन लरसे। और खुदावन सयोन में बुजुर्ग है, वो सीन है, वो कादिर मुद्रिक है और उसके जलाल को कोई सह नहीं पाता, क्योंकि वो है जलाली, वो है मस्सा वाला, वो है कुव्वत वाला, वो है ताकत वाला, वो उसका मस्सा आपके चुओं को तोड़ देगा। आमीन। आमीन। छोटा आमीन। दोनों हाथों को उठा के बोलो आमीन। दोनों हाथों को उठा के बोलो आमीन। क्योंकि उसका जलाल आपके हर एक रोग को खत्म करता है, तोड़ता है, चुभों को, बंदरों को, पैरियों को। शर्त यह है आप उससे मिलने के लिए आए। आमीन।
खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।